محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ 25واں باب، رب کعبہ کا پیغام۔ صحرا کے آزاد فطرت خیمہ نشینوں کے دل کی آواز تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ وہ صحرا کے آزاد فطرت باشندے تھے، ان کے دل صحرا کی طرح کھلے ہوئے تھے، ان کی طبیعت میں کسی طرح کی کج لپیٹ نہیں تھی۔ حد نظر تک پھیلا ہوا ریگزار، سروں پر صاف شفاف آسمان، ہر چیز واضح اور نمایاں۔ اس ماحول میں پیدا ہونے اور پروان چڑھنے والے یہ لوگ کسی طرح کی قید و بند گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کی یہی آزاد فطرت اور حریت پسندی تھی کہ وہ کبھی کسی کے محکوم نہ بن سکے۔ نجد و حجاز کا یہ علاقہ آزاد قبیلوں کی جولانگاہ تھا۔ ان کے اطراف دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کی حدود پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک طرف فارس سلطنت عظمیٰ تھی، جو ایک کمان کی شکل میں عراق سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری جانب روم کی عظیم الشان شہنشاہیت تھی، جو شام سے مصر تک پیر پھیلائے ہوئے تھی۔ ان دو قوتوں کے درمیان صحرا کا یہ کھلا ہوا حصہ حد فاصل بنا ہوا تھا۔ نجد و حجاز کے عرب قبائل کی غیرت و حریت پسندی کا یہ غیر محسوس اثر تھا کہ روم اور فارس کی حکومتیں اس علاقے پر کسی وقت بھی قابض نہ ہو سکیں۔ ان آزاد قبائل کو چھیڑنے کی کسی نے بھی ہمت نہیں کی۔ اس سرزمین میں آزادی و حریت کا یہ جذبہ اس مقدس گھر سے وابستگی کی وجہ سے تھا، جس کی بنیاد اللہ کے دو اولو العزم پیغمبروں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ ان دو پیغمبروں کی تعلیم زمانے کے انقلابات میں دلوں سے اتر گئی تھی، مگر اس کے انجانے اثرات اب تک ان کے مزاج و فکر میں رچے بسے تھے۔ خدا کا یہ گھر ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کا ذریعہ تھا کہ ان خودسر قبیلوں کے درمیان جو برس ہا برس تک ایک دوسرے سے پیکار طلب رہتے تھے، اگر کوئی مشترک واسطہ اور رابطہ تھا تو وہ بس یہی خانہ خدا تھا۔ اللہ کا یہ گھر، جسے وہ پورے وثوق کے ساتھ اللہ ہی کا گھر تسلیم کرتے تھے، اور باوجود مشرکانہ عقائد کے اس گھر کی نسبت کسی دیوی دیوتا یا بت سے نہیں کرتے تھے، جو ان کے اندر نفسیاتی طور پر خود اعتمادی کو قائم رکھتا تھا۔ دوسری قوموں کے علمی، تہذیبی اور تمدنی ارتقاء کے مقابلے میں ان کے پاس اگر فقر و ناز کا کوئی سرمایہ تھا تو وہ بیت اللہ ہی تھا۔ یہ احساس کہ ہم اللہ کے گھر کے محافظ و متولی اور امین ہیں، دوسروں کے مقابلے میں ان کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیتا تھا۔ انہی میں سے کسی نے کہا تھا، قورنق کے نقش و نگار والے محل اور کسرا کے مزین ایوان بہت بلند اور عالی شان ہیں، مگر وہ فنا ہونے والوں کے گھر ہیں کہ ان کے مالک و مکین زمانے کی ہر گردش کے ساتھ ناپید ہوتے رہے، اور ہم
उस घर का तवाफ करते हैं जिसका मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका मकीन दूसरों के हाथों से निकाला नहीं जाता। हम उसकी मुकद्दस बुनियादों के मुहाफिज हैं। हमारे लिए ये सबसे ज्यादा फख्र की बात है। दुनिया जहान से हम सर उठाकर पूछते हैं, तुम्हारे पास ऐसा कोई मुकद्दस व पाकीज़ा घर है जिसका तुम यूं तवाफ करो जैसा कि हम करते हैं। खाना खुदा की अजमत व तकद्दुस के होते हुए उनके लिए मुश्किल था कि वो किसी दूसरी बारगाह के न्याजमंद व मन्नत कश बने। बैतुल्लाह का हर तवाफ उन्हें हर तरह के तकद्दुस व इक़्तिदार से मुनहरिफ रखता था। बुतों की पुरसतिश भी वो करते थे तो इसी तसव्वुर के साथ कि ये देवी देवता रब्बुल बैत के यहाँ मकबूल बारगाह हैं और कबूल तो दुआ का जरिया और वास्ता। दूसरी मुशरिक कौमों की तरह उनके मुशरिकाना नजरियात ज्यादा पेचीदा और फलसफियाना नहीं थे। अपने इस शब रोज में इस सादा माहौल और वाज़ेह पस मंजर में दावत हक का ये ऐलान कि कोई इंसान किसी इंसान पर बरतरी नहीं रखता, किसी को किसी पर हुक्मरानी और बादशाहत का हक नहीं, सब इंसान सिर्फ रब्बुल आलमीन की राइयत हैं। आका मालिक और फरमा रवा वही है, उसका हुक्म और कानून काबिल तस्लीम है, उनकी फितरत के ऐन मुताबिक था। इसलिए जब भी उनसे कोई कहने वाला कहता कि अल्लाह ही इलाह है तो उनको ये बात कुछ मानूस सी मालूम होती। रब्बे काबा का इताअत का पैगाम कि इस घर के रब की इबादत व ताअत करो जो तुम्हें भूख में खिलाता और खौफ से पनाह में रखता है, उनकी फितरत से गहरी मुनासिबत रखता था। इसलिए उनके दिल अल्लाह के दीन की तरफ झुकते जाते थे और कुरैश के सरदार हैरान थे कि आखिर लोगों को ये क्या हो गया है कि एक के बाद एक सब के सब मोहम्मद के गर्विदा होते जा रहे हैं। हर साल हज के मौसम में अतराफो किनार के कबाइल से जायरीन की एक बड़ी तादाद मक्का आती थी। हज के 4 महीने अमन व अमान के महीने होते थे। इन दिनों में हर एक को नक्लो हरकत की, इजहार ख्याल की, हर तरह की आज़ादी हासिल होती थी। खास तौर से शहर मुकद्दस और उसके अतराफ में इन महीनों की हुर्मत का बहुत ज्यादा एहतमाम किया जाता था। इस पुरअमन माहौल से मुसलमानों ने पूरा फायदा उठाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी ज़ायरीन हज की क़ैमागाहों में निकल जाते और जहां भी मौका मिलता लोगों को दीन हक की दावत देते और उन्हें अल्लाह की आयात सुनाते। कुरान की ज़बान में जब उनको इस जानिब तवज्जो दिलाई जाती कि ये नीलगू आसमान, ये चांद, सूरज, ये सितारे, ये मीठे पानी के चश्मे, ये फैली हुई ज़मीन, फिजाओं में उड़ते हुए ये परिंदे, ज़मीन पर चरने वाले ये मवेशी, जिनको देख देख कर आंखों में सुरूर आता है, आखिर ये सब किसने पैदा किया है? कौन है जो इन्हें उनका रिस्क पहुंचाता है? ये किसके हुक्म पर बादल उमंड कर आते हैं और सूखी जमीन को तरोताजा कर जाते हैं? ये मुर्दा जमीन आखिर क्यों कर असरे नौ जिंदा हो जाती है और अपनी कोख से रिस्क के जखीरे उगल देती है? ये पूरा कारखाना आलम आखिर किसकी कुदरत व हिकमत से चल रहा है? उनका जवाब सादा मिजाज सहरा नशीनों के लिए
कुछ दुश्वार न था। बेअख्तियार उनका दिल पुकार उठता, अल्लाह वही बड़ा है, वही कुदरत वाला है। इस इकरार के बाद जब उनके सामने ये दावत रखी जाती कि अल्लाह जो खालिक और राज़िक है, वही इलाह है, वही मालिक है, वही हाकिम है, उसकी बादशाही में कोई शरीक नहीं, तुम उसी के वफादार बनकर रहो, उसी की पुरस्तिश करो, उसी के दिए हुए कानून की इताअत करो, तो ये बात उनके लिए पेचीदा और नाकाबिले फहम न होती। उनकी फितरत बोल उठती कि ला रैब, जो पैदा करता है वही मालिक भी होता है, जो रिस्क देता है वही आका बनता है, और जो रब है वही हाकिम भी है। अब चाहे वो जबानों से इकरार करते या ना करते, मगर उनके दिलों में ये बात तराजू हो जाती जब वो अपनी सुर्ख ऊंटनियों और भूरे ऊंटों पर लौटते और सहरा की वसतों में सूरज के तुलुओ गुरूब का नजारा करते। रात में चांद सितारों की सजी सजाई बस्म झिलमिला उठती और जमीन के नशेबो फराज पर वो हदी क़वानी करते चढ़ते उतरते, तो मक्का में सुनी हुई वो आयात उनके जहनों में गूंज उठती और एक बावकार और मुतबस्सम चेहरा निगाहों में घूम जाता। मैं तुम्हें खुदाए वाहिद की तरफ बुलाता हूं, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, और सबको लौटकर उसी के पास जाना है। वो एक दूसरे की तरफ झुककर सरगोशी करते हुए कहते, वो शख्स जिसे कुरैश ने साहिर, काहिन, शायर और दीवाना और झूठा कहा था, ना साहिर मालूम होता है, ना काहिन, ना उसका कलाम शायरों का है, ना बातें दीवानों की, तो क्या वो सच कहता है कि वो अल्लाह का रसूल है? देखो, दूसरा कहता, अगर वो ये बात गलत कह रहा है तो उसका वबाल उसी पर पड़ेगा, और अगर सच कह रहा है तो उसकी बात ना मानकर हम खुदा के गजब में आ जाएंगे। इसलिए उसका इनकार करना और उसको झुटलाना कुछ मुनासिब नहीं। इस तरह हक बात उनके दिलों में उतरती चली जाती, यहां तक कि वो दूसरे साल मक्का आते तो हर तरफ तलाश करते फिरते थे कि वही शख्स जिसने उन्हें कुरान सुनाया था दिखाई दे तो उसका दामन थाम लें कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमको पाक कर दीजिए और हमको अपने दामने रहमत में ले लीजिए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला